Hello students, I am Pratik. Welcome to our channel Empower Education. In last video, we have discussed the first chapter of 10 CBSE number system, its weightage and type of sums. Today, we are going to discuss the next chapter, polynomials. Its weightage and type of sums are to be there in board exam 2023. Tell me what is meant by polynomial. Polynomial is nothing but an algebraic expression with constants and variables with mathematical operations like addition, subtraction, multiplication with non-negative power. Suppose there is a polynomial x square plus 1 by x plus 3x cube. Check whether the given expression is a polynomial or not. Here the power of the first term is 2, power of the third term is 3, but the power of middle term, that is second term, is nothing but x power minus 1. Here the power is minus 1. Then the given algebraic expression is not a polynomial. Means the highest power or the power of the equation must be a positive. Next term is degree. What is degree? Degree is nothing but the highest power of the given polynomial. There is an example, x square plus 9x power 4 plus 4x cube, and you have to write the degree of the given polynomial. Here the highest power of the first term is 2, highest power of the second term is 4, and the highest power of the third term is 3. Means the highest power of the given algebraic expression is 4. Means the degree of the polynomial is 4. Next topic is zeros of the polynomial. What is meant by zero of the polynomial? If we substitute any value of x, any value of variable in that polynomial, and the value, the final value of the polynomial is 0, then we can say that that substituted value is 0 of the polynomial. Suppose there is an equation x square plus 2x minus 3. If we substitute, the value of x is 1. The value of x is 1. This 1 square plus 2 into 1 minus 3. 1 square is 1 plus 2 into 1 2 minus 3. 1 plus 2 3. 3 minus 3. And the final value after substituting x equal to 1 is 0. Then we can say that the x equal to 1 is 0 of that polynomial. Here there are different types of polynomial based on the degree. Suppose the degree is 1, the degree of the polynomial is 1, then the type of polynomial is known as linear polynomial. If the degree is 2, then the polynomial is known as quadratic polynomial. If the degree is 3, then the polynomial is cubic polynomial. Degree is 4, the polynomial is biquadratic polynomial, and so on. Tell me 5, the constant 5 is a polynomial or not? 5 is a polynomial. Here there is no variable. Suppose 5 is no variable, but there is a variable with degree 0. Anything power 0 is 1. Then 5 into 1 equal to 5. Then this 5, this polynomial is known as constant polynomial. There will be a sum in board exam. Find the zeros of the polynomial. Then how to find zeros of polynomial? There are two methods to find zeros of polynomial. One is graphical method and another is algebraic method. How to find zeros of polynomial by graphical method? Suppose here are 3 examples. First, second and third. तो यहाँ पे जीरो कैसे फाइंड करना है? जितनी बार एक ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है,
तो वो होगी उसका, वो वैल्यू होगी उसकी जीरोस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को बस एक ही बार इंटरसेक्ट किया, देन नंबर ऑफ जीरोस इज 1। यहाँ पे क्या है, द कर्व ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट two different points, then the number of zeros is 2. Here the curve of the polynomial intersect x axis at 3 different points, means the number of zeros is 3. Then how to find the number of zeros by algebraic method? In 10th standard you have only quadratic polynomial and you have to find the zeros of the quadratic polynomial. How many zeros are there for the quadratic polynomial? Suppose there is an equation ax plus b, ax square plus bx plus c, ax cube plus bx square plus cx plus d. Here the highest power is 1, highest power is 2, highest power is 3. Then the first polynomial is known as linear polynomial, second is quadratic polynomial, and third is cubic polynomial with degree n equal to 1, degree n equal to 2, and degree n equal to 3. The number of zeros for any polynomial can be calculated by using formula n is less than or equal to degree, or degree is less than or equal to n. Suppose here the degree is 1, means the polynomial should have no zero or 1 0. Here the degree is 2, then the polynomial have no 0, 1 0 or 2 0 and so on. There is a graph of linear polynomial. The graph of linear polynomial is always a straight line. अब देखो यहाँ पर एक straight line है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये लाइन एक्स एक्सिस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे क्या है, नो जीरो। अब नेक्स्ट अगर ग्राफ हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, देन हियर द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। अब हमने देखा कि quadratic polynomial, the graph of quadratic polynomial is always a parabola। यहां पे एक पैराबोला है, यहां पे एक पैराबोला है और यहां पे एक पैराबोला है। अब यहां पे क्या है, इन तीन फिगर्स में ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है, यहां पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। यहाँ पे दिस पैराबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ जीरोस आर 2। अब अगर एक ऐसा पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मीन्स द नंबर ऑफ जीरोस आर 1, then the number of zeros for quadratic polynomial may be 0, 1 और 2। ये हुआ graphical method। अब हम देखेंगे how to find the zeros of quadratic polynomial by algebraic method। There is a equation or there is a polynomial x square plus 2x minus 3 and we have to find the zeros of polynomial, means we have to take the value of polynomial equal to 0. How to find zeros? We have to split the middle term. The first step, there are different steps. First step, multiply first and third term. First term is 1, 1 into minus 3 is minus 3. Now we have to factorize this minus 3. How to factorize this minus 3, and the addition of the factors should be the middle term. Here the third term is minus 3. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर लेने के जिनकी एडिशन आ गई +2। हम लेंगे 3 and -1। 3 into -1 is -3 and 3 minus 1 is 2। Then just split the middle term, एक्स स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस एक्स, और ये -3 का -3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है,
फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म कंसिडर करने। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है, x इज कॉमन, देन यहां पे क्या बचा x प्लस 3। अब यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है, -1 इज ए कॉमन, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये पूरे इक्वेशन में क्या है, x प्लस 3 इज ए कॉमन, देन x प्लस 3 इज ए कॉमन, यहां पे क्या बचा x और यहां पे -1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 1 इस पॉलिनॉमियल में डालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। मतलब ये क्या है, उसके जीरोज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ सम क्या आ सकता है कि अगर हमें 0 दिया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू कैसे निकालनी है, सपोज देयर इज ए इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 3 और 2x प्लस k। हमें दिया है सपोज 3 is a 0 of the polynomial, then find the value of k। अब कैसे निकालना है, क्या दिया है, 3 is a 0 of polynomial। मतलब अगर हम इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू 3 डालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये क्या दिया है, 3 is a 0 of the given polynomial। तो x की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस k। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस k इक्वल टू 0। 9 प्लस 6 15 प्लस k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू 15। अगर इस पॉलिनॉमियल का 3 0 है तो k की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब ये तो हमने देखा कि अगर पॉलिनॉमियल दिए तो उसके 0 कैसे निकालने हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले कि अगर हमें जीरोस दिए हैं तो उस 0 के बेसिस पे हम इक्वेशन कैसा फॉर्म करेंगे। इफ देयर आर 2 zeros like 1 and 2 are the zeros of polynomial and you have to find the equation of the polynomial। तो यहाँ पे क्या है, 2 zeros है 1 and 2। हम लोग इसको क्या लेंगे, द फर्स्ट 0 इज अल्फा एंड सेकेंड 0 इज बीटा। अब यहाँ पे 0 कितने दिए, 2 0 दिए, मतलब ये कौन सी पॉलिनॉमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इफ जीरोस आर गिवन इज k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे जीरोस क्या है, 1 and 2। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या, इक्वेशन इक्वल टू k x², सम हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा। देन जस्ट पुट द वैल्यूज, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 इंटू x प्लस 2। तो हमारा अगर हमें जीरोस दिए हैं 1 and 2, देन द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल इज k इज नथिंग बट एनी कांस्टेंट टर्म x² माइनस 3x प्लस 2। अब हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि अगर ये इक्वेशन हमने लिया तो इसके जीरो सेम आते हैं कि नहीं। तो हम क्या लेते हैं, सेम इक्वेशन ले लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 अब 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी एडिशन क्या होगी, -3। अब 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 2 2, लेकिन 1 प्लस 2 किया तो वैल्यू क्या आएगी,
+3, तो हमें क्या लेना है, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और -1 - 2 इक्वल टू -3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, x²। इस 3x को हम क्या करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे, -x - 2x, और ये +2 का +2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले दो टर्म कंसिडर करने और लास्ट के दो टर्म। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन क्या है, x इज कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, x - 1। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, -2 इज कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, x, और इधर प्लस है, ये माइनस और -1 इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है, x - 1, और यहाँ पे क्या बचा, x, और ये -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x - 1 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो पहले हमने क्या लिया था, अगर 1 और 2 जीरोज है तो इक्वेशन क्या होगा, x² - 3x + 2। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और फिर हमारे जीरोज क्या आए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट हम क्या आ सकता है कि हमें अगर सम और प्रोडक्ट दिया है तो उसके जीरोज दिए, उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के हमें इक्वेशन फाइंड करना है, और उस इक्वेशन को हमें वेरीफाई करना है विथ कोएफिशिएंट्स। मीन द सम कैसे होगा, इफ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस एंड दैट, देन वेरीफाई द zeros एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज हमें एक पॉलिनोमियल दी है x² + 7x - 12, and we have to find the zeros of the polynomial. Also we have to verify the zeros with their coefficient. अब हमें जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू 0 -12 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है, x² + 7x + 12 इक्वल टू 0। अब 12 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है कि जिनकी एडिशन 7 आएगी, 3 and 4। तो क्या करेंगे, x² + 3x + 4x + 12 इक्वल टू 0। x इज कॉमन, x + 3, 4 इज कॉमन, x + 3 इक्वल टू 0। देन x + 3 इक्वल टू 0 और x + 4 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4। अब हमें ये जीरोज वेरीफाई करने हैं विद देयर कोएफिशिएंट। तो हम लोग इसको क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -4। तो हमारे पास इसके लिए दो फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा + बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, -3 -4। अब हम अगर ये इक्वेशन कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0, विल गेट द वैल्यूज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 12। अब हमें वेरीफाई करना है, पहला क्या है, अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, और अल्फा बीटा के हमें वैल्यूज क्या आए थे, अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -4। तो अल्फा क्या है, -3 + -4 इक्वल टू -7। ये क्या होगा, -3 -4 इक्वल टू -7, -7 इक्वल टू -7। मतलब हमारे जो जीरोज है वो सम के साथ वेरीफाई हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। अल्फा की वैल्यू क्या है, -3, बीटा की वैल्यू क्या है, -4 इक्वल टू 12 हमें चेक करना है। तो क्या होगा, 3 × 4
12 और ये नेगेटिव नेगेटिव गेट्स पॉजिटिव इक्वल टू 12, मतलब प्रोडक्ट पे हमारा क्या हुआ, वेरीफाई। तो ये सम कितने मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड में, 3 मार्क्स के लिए। अब लास्ट टाइप क्या बचा है, अगर ये हमें इक्वेशन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है और हमें फाइंड करने हैं सम वैल्यूज। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial, then find 1 upon अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये हुआ फर्स्ट सम। और सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए एक बेसिक क्या फाइंड करना है हमें, अल्फा बीटा के वैल्यूज, सम एंड उसका प्रोडक्ट। अब हमने पहले ये इक्वेशन सॉल्व करके रखा था, हमारे पास अल्फा बीटा के वैल्यूज क्या आए थे, अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -4। अब हमें फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम में लास्ट लेक्चर में क्या बोला था, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, सबके हाईएस्ट पावर क्या है, 1 1, मतलब हमारा एलसीएम क्या आया, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा है, बीटा नहीं है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, बीटा प्लस, यहाँ पे बीटा है, अल्फा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो और सेकेंड क्या है, सेकेंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हमने नीचे क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यहाँ पे कि क्या हो सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब -3 -4 -7, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, -3 इंटू -4 12। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7 अपॉन अल्फा बीटा 12। तो जो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज -7/12। अब ये कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू है, लेकिन अल्फा स्क्वायर पे इसकी वैल्यू है क्या, नहीं है। तो पहले हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -7, देन -7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 12। तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 24। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 एंड 4 माइनस 2 25। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 12 का हमें क्या लेना है स्क्वायर। तो अल्फा बीटा 12 स्क्वायर कितना है 144। तो जो हमें वैल्यू पूछी थी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट 25 अपॉन 144। तो इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कोई भी सम्स नहीं आएंगे। तो हम एक बार ओवरव्यू कर लेते कौन कौन से सम आए थे। फर्स्ट टाइप क्या थी, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके हमने क्या देखे थे, दो टाइप देखे थे, ग्राफिकल मेथड और
algebraic method. Second type क्या थी? If zeros are given, then find equation of polynomial. Third type क्या है? Find, suppose 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा, या फिर दिया है बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, या फिर ऐसे बहुत सारे सम दे सकते हैं 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने चेक किया था अल्फा बीटा और ऊपर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या होगा बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और इधर बीटा क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा ब्रैकेट क्यूब। तो ये 3 टाइप के अलावा बोर्ड में कोई सम नहीं आएगा। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एलसीएम, एचसीएफ और हाउ टू प्रूव दैट द रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए होगा? पूरे जो अलजेब्रा के सम चैप्टर से, सपोज पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चैप्टर मिला के बोर्ड में कितने मार्क्स के सम आते हैं? 20 मार्क्स। मतलब एक चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट कितने मार्क्स हुए? 6 to 7 मार्क्स। और 6 to मतलब अगर ये पॉलिनोमियल हम चैप्टर देखेंगे तो बस 3 टाइप के लिए कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स। अब जैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर देखा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके टाइप ऑफ सम और उसके बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको पॉलिनोमियल में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एम्पावर एजुकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।